Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10. In this lecture we will discuss an example. Example number 3. To show that integral equation g of s is equal to f of s plus 1 over phi integration from 0 to 2 pi sin s plus t g of t dt possesses no solution for f of s is equal to s, but it possesses infinitely many solution when f of s is equal to 1. देखिए एक इंटीग्रल इक्वेशन है f of s plus 1 over phi integral from 0 to 2 pi sin s plus t g of t dt. कहते हैं कि possesses no solution, इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है f of s is equal to s. अगर आप फंक्शन s f of s ले रहे हैं तो इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, बट इट पोजेसेस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन. अगर आप f of s 1 ले रहे हैं तो फिर इसके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन है. देखिए एज g of s is equal to f of s प्लस 1 over phi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू phi, और इस फार्मूले को आप एक्सपेंड करें तो साइन s cos t प्लस cos s sin t आएगा g of t dt. This is equation number 1. Now first we are going to find eigenvalue of homogeneous integral equation. अब हम इससे ये होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ले रहे हैं जिसके लिए हम आइगन वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. सो द होमोजीनियस इक्वेशन g of s बिकम lambda 0 to 2 phi sin s cos t plus cos s sin t g of t dt. Now here in this homogeneous equation kernel is k of st which is equal to sin s cos t plus cos s sin t. ये इसका कर्नल है. ये कर्नल सेपरेबल भी है और सिमेट्रिक भी है. सो दिस इक्वेशन टू implies that g of s is equal to lambda sin s इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 phi. ये सेपरेबल कर्नल है इसलिए हम इसको सेपरेटली लिख रहे हैं. नाउ cos t g of t dt, अब यहाँ भी इंटीग्रेशन लिख दे lambda cos s इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 phi sin t g of t dt. This is equation number 3. Now let c1 is equal to this integration from 0 to 2 pi cos t g of t, and c2 is equal to integration from 0 to 2 phi sin t g of t dt. So c1 this is equation number 4 and c2 is equation number 5. Now putting equation 4 and 5 and 3, ये इक्वेशंस इक्वेशन 3 में पुट करें. सो g of s is equal to lambda c1 lambda sin s c1 plus lambda cos s c2. This is equation number 6. Now if equation 6 is the solution of equation 2, अगर ये इक्वेशन इसके लिए इस होमोजीनियस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, so it must satisfy equation 4 and 5. so ये इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे. नाउ यहाँ आप वेरिएबल s की जगह t पुट करें क्योंकि फंक्शंस t में है. सो g of t is equal to lambda sin t c1 plus lambda cos t c2. ये इक्वेशन 7 बन गया. नाउ 7 must satisfy equation 4 and 3, equation 4 and 5 sorry. Now we have putting equation 7 in equation 4, ये इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करें. सो आपके पास आ जाएगा g of t यहाँ पुट करें c1 is equal to lambda c1 integration from 0 to 2 phi
cos t sin t dt plus lambda c2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi cos square t dt। आपके पास 7 इक्वेशन को इक्वेशन 4 में पुट करने से ये इक्वेशन आया। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, सो इसके इंटीग्रेशन से साइन स्क्वायर टी बाई 2 आएगा, क्योंकि साइन टी के डेरिवेटिव काज हैं और लिमिट्स फ्रॉम 0 to 5। नाउ यहाँ आप काज स्क्वायर टी की जगह ये फार्मूला पुट करें 1 प्लस काज 2t डिवाइड बाई 2 dt। अब देखिए यहाँ आप जब लिमिट्स पुट करें तो ये अपर लिमिट भी 0 देगा और राइट लोअर पे भी 0 देगा। सो लिमिट्स पुट करने से ये टर्म 0 हुआ और इसको इंटीग्रेट करने से लैम्डा c2, इसका इंटीग्रेशन 2 का हमने बाहर लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन t आया और इसका कास साइन 2t बाई 2 आया, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5। अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट्स पुट करें तो c1 इज इक्वल टू लैम्डा c2, इसके इंटीग्रेशन पुट करने से 2 पाई आएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा लिमिट्स पुट करने से। सो c1 इज इक्वल टू लैम्डा c2 पाई, हेयर c1 minus lambda phi c2 is equal to 0. This is equation number 8. Now putting the value of 7 in equation 5, we get equation 7 equation number 5 में पुट करें तो आप c2 की वैल्यू c2 के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो c2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 sin t lambda sin t c1 plus lambda cos t c2 dt. After solving this c2 you will get minus lambda phi c1 plus c2 is equal to 0. This is equation number 9. Now equation 9 8 और 9 को सॉल्व करते हैं। So for non-trivial solution the determinant of these two equations will be 0 as we know. सो यहाँ आप कोएफिशिएंट्स ले ले c1 के। सो पहले इक्वेशन में 1, दूसरे में माइनस लेमडा फाई और c2 की वैल्यू माइनस लेमडा फाई एंड 1 सेकंड इक्वेशन में। दिस इज इक्वल टू 0। सो सॉल्विंग दिस डिटरमिनेंट यू विल गेट लेमडा इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 ओवर 5। सो द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशंस are lambda 1 is equal to 1 over 5 and lambda 2 is equal to minus 1 over 5. This is equation number 10. Now for lambda 1, अब अगर आप lambda 1 को इक्वेशन में पुट करें, फर्ज कर 9 में पुट करें तो c1 is equal to c2 दोनों इक्वल आएंगे। So putting in equation 6, now equation 6 में वैल्यूज पुट करें। सो इक्वेशन 6 ये है। सो जी ऑफ एस इज इक्वल टू लैम्डा हमारे पास आया था 1 ओवर 5 साइन c1 लैम्डा 1 ओवर 5 cos c2, बट c1 एंड c2 both are equal, so you will put here c1, दोनों इक्वल है तो आप इक्वेशन 6 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा उन दोनों में c1 और c2 वैल्यूज इक्वल होंगे। नाउ जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर 5 c1 आप कॉमन ले ले, सो साइन एस प्लस कॉस एस इक्वेशन नंबर 11 ये बन गया। नाउ द इनहोमोजेनियस इक्वेशन 1 will have solution if and only if this product is 0. ये इक्वेशन एक सॉल्यूशन रखेगा, इसका सॉल्यूशन होगा अगर आप ये जी ऑफ एस एफ ऑफ एस 0 प्रूव करें। जी ऑफ एस एफ ऑफ एस अगर इस इक्वेशन में जनरली अगर आप प्रूव करें फ्रॉम 0 to 5 और दिस इक्वेशन
अगर ये 0 हो तो ये इक्वेशन 1 will have, this equation will have solution. Now for f of s is equal to s, we have, हमें दिया गया था कि f of s के लिए ये solution नहीं रखता, तो हम चेक करते हैं. f of s is equal to s, we have integral from 0 to 2 pi g of s f of s ds, integration from 0 to 2 phi g of s is equal to 1 over phi c1 sin s plus cos s from equation 11, and f of s is equal to s. सो यहाँ s पुट करें f of s की जगह. अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेके आप लिमिट्स पुट करें, तो आपके पास आएगा -2c1. -2 इज नॉन ज़ीरो, c1 इज नॉन ज़ीरो. सो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रेशन आपको नॉन ज़ीरो दे रहा है, ज़ीरो नहीं दे रहा. दिस शोज दैट 1 हैज़ नो सोल्यूशन विद f of s इज इक्वल टू s. जब आप f of s ले रहे हैं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं दे रहा. नाउ फॉर f of s इक्वल टू 1, अब f of s इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई g of s f of s ds. देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई 1 over phi c1 sin s plus cos s from the equation 11, and यहाँ हम ले रहे हैं f of s को 1 ले रहे हैं. सो जब आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन sin s ds cos s ds, तो ये आपको 0 वैल्यू देगा, ये प्रोडक्ट 0 देगा जस्ट इन 2 स्टेप्स. सो इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 हैज़ द सोल्यूशन बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, शोज दैट इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फॉर द f of s इक्वल टू 1. सो हमने प्रूव किया कि f of s इक्वल टू 0 के लिए ये कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा, बट फॉर f of s इक्वल टू 1 ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस दे रहे हैं, क्योंकि c1 and c2 are both equal. So we prove for lambda 1 over 5 in this case. So this is enough for this example. Thank you for watching.